Hello everyone. So this is the fourth lecture of the topic acid-base titration. In first three lectures we discussed many things about acid-base titration, and in the last lecture we were discussing about different types of acid-base titration. So we will continue with that topic only. We discussed titration of strong acid with strong base, then weak acid with strong base. So we will be discussing remaining different types of acid base titration in this lecture. So let's start the lecture. So this is the next type of acid base titration of weak base with strong acid. So here we will be doing titration of weak acid with strong base, and weak base with strong acid, and here ammonium hydroxide is weak base, and we will be titrating ammonium hydroxide with HCl, which is strong acid. So in this titration, weak base, that is ammonium hydroxide, is taken in conical flask and it is titrated with acid, that is HCl, and this reaction takes place NH4OH plus HCl, and it will give this salt NH4Cl along with liberation of water molecules. तो इस टाइट्रेशन में जो कि वीक बेस का टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन करते हैं, जो कि कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है और उसका टाइट्रेशन किया जाता है HCl के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसमें रिएक्शन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ जब टाइट्रेशन होगा और सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, और जो सॉल्ट बनता है वो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड अलोंग विथ लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अब ये जो सॉल्ट बनता है उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाता है, बिकॉज दिस सॉल्ट इज ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सो it easily gets hydrolyzed in presence of this water molecule, and due to hydrolysis of this salt formed, H plus ion concentration increases, and due to increase in H plus ion concentration, what happens? Due to increase in H plus ion concentration, pH decreases. So at the end point or near the end point, that is near the equivalence point, pH will be less than 7. Due to this reason, pH remains less than 7. Technically, when we will see at equivalence point, pH should be around 7. equivalence point पे pH 7 होना चाहिए, but जो salt बन रहा है ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ये जो सॉल्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड का, उसका हाइड्रोलिसिस फिर से हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में. अब ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद देखिए ये रिएक्शन हो रहा है और यहाँ H प्लस आयन लिबरेट हो रहा है, एंड ड्यू टू H प्लस आयन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्या होता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आते आते जो भी सॉल्ट बन रहा था वो सॉल्ट जो है अब हाइड्रोलाइज होकर H प्लस आयन बना दे रहा है, तो H प्लस आयन की वजह से pH जो है वो 7 ना होकर 7 से कम हो जाता है और एसिडिक हो जाता है. ठीक है, तो इस टाइट्रेशन में जो इन्फ्लेशन रेंज जो होता है वो है 3 to 6.5. So in this titration the inflation range is 3 to 6.5, which is less than 7. And why it is so? Due to increase in concentration of H plus ion, and why there is increase in concentration of H plus ion? This is due to hydrolysis of salt formed during the titration. So this is the reaction for that, and the inflation range will be 3 to 6.5, and for this the indicator used is methyl red. And why this indicator is used? Because its pH range is 4.8 to 6, which falls in this range. So
due to this reason, methyl red is used as indicator in this titration of weak base versus strong acid, that is ammonium hydroxide titration with hydrochloric acid. And this is the neutralization curve. This is volume of acid added, that is HCl added, and this is pH change. And initially pH will be high due to ammonium hydroxide, because since ammonium hydroxide is a base, it will liberate hydroxyl ion, and due to that pH will be high when titration is starting, and gradually pH will decrease due to addition of HCl. And what will happen when HCl will be added? OH minus ion will be consumed by that H plus ion of HCl. So due to that, neutralization takes place and the alkaline pH gradually decreases towards neutral. And when the inflation will come, suddenly pH decreases, and this pH decreases due to completion of ammonium hydroxide and excess of HCl added. तो ये क्यों ग्रेजुअल शार्प डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि अब जो कोनिकल फ्लास्क में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया था, उसमें अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो गया, और ब्यूरेट से आप जैसे ही एक्सेस ऑफ HCl डालोगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और pH सडन डिक्रीज होता है. तो इस तरीके का न्यूट्रलाइजेशन कर्व इस टाइट्रेशन में आता है. Now we will see the next type of titration, which is titration of weak base versus weak acid. In this, both are weak in nature, means acid is also weak and base is also weak. So in this titration of ammonium hydroxide, which is weak base, is done with acetic acid, which is a weak acid. So this is the reaction which takes place. This is acetic acid. Acetic acid reacts with ammonium hydroxide to give this salt of weak acid and weak base, along with liberation of water molecule. And since this salt is a salt of weak base and weak acid, so further hydrolysis of this salt will take place very fast, and due to hydrolysis of this salt form, what happens? Acetic acid and ammonium hydroxide will form. Okay, and suppose if we are taking ammonium hydroxide, 100 ml of ammonium hydroxide, 0.1 molar ammonium hydroxide in a conical flask, and we are titrating it with acetic acid, 0.1 molar acetic acid, the inflation range will come at around 6 to 8, because in this the inflation range will be around 7 only, because in this due to hydrolysis, since hydrolysis of salt will take place, but there will be no dissociation of acetic acid and ammonium hydroxide, and due to this there will be no change in the concentration of H plus ion or OH minus ion, because this is also a weak acid and this is a weak base, and so this weak acid and weak base will not dissociate further to give H plus ion and O minus ion. So due to this the pH will remain stable at inflation point. And what is that pH? pH will be around 7 only. So when we see the neutralization curve, initially pH will be high due to ammonium hydroxide, and gradually as acetic acid is added, the neutralization reaction will take place and pH will move towards neutral, that is 7, and at the inflation point the pH will suddenly decrease towards 7, and then it will go further down. And since the range is very narrow,
when we are seeing this neutralization curve, the range is very narrow, so it becomes very difficult to detect that end point. So in this case, a mixture of indicators are used so that we can detect the colors, detect the end point. तो इस टाइट्रेशन में होता ये है कि जो रेंज है, इंक्लेशन रेंज, वो 6 से 8 का बहुत नैरो है, तो उसमें क्या है, सडन चेंज पीएच का होता है और बहुत माइन्यूट रेंज है, तो उसमें हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो इंडिकेटर यूज होता है वो वैसा कोई इंडिकेटर है ही नहीं कि वो इस नैरो रेंज को डिटेक्ट कर पाए, मतलब उस रेंज में कलर चेंज दे पाए। तो उस केस में एक मिक्सचर यूज किया जाता है। वो कौन सा मिक्सचर है? वो है न्यूट्रल रेड मिथलीन ब्लू मिक्स इंडिकेटर यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये कलर चेंज शो करता है इस नैरो रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर वही होता है, और इसमें जो कलर चेंज होता है वो पहले थोड़ा रेडिश जैसा होता है, वो फिर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये था टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। नाउ वन मोर type is there, that is titration of polybasic acid with strong base. And first we will discuss what is this polybasic acid. So polybasic acid is an acid whose basicity is more than 1, जिसकी बेसिसिटी 1 से ज़्यादा है, उसी को पोलीबेसिक एसिड बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अभी तक हमने यही देखा कि एसिड है मतलब वो H+ आयन को लिबरेट करता है। तो अगर एक H+ आयन लिबरेट कर रहा है तो वो मोनोबेसिक हो गया, अगर 2 कर रहा है तो वो डाइबेसिक हो गया, ठीक है। अगर 3 कर रहा है तो ट्राइबेसिक होता है। तो उसी तरह ऐसे एसिड जो 1 से ज़्यादा H+ आयन लिबरेट करते हैं उसको पोलीबेसिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। और उन्हीं को पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, H2SO3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिबरेट होंगे, ये डाइबेसिक हो गया, ठीक। उसी तरह यहाँ पे H2CO3, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, H3PO4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिबरेट होंगे। तो इसी तरीके से ऐसे जो सॉल्वेंट्स हैं या ऐसे जो केमिकल हैं जिसमें 1 से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन लिबरेट हो सकते हैं, वैसे एसिड्स को क्या बोला जाता है? पोलीबेसिक एसिड बोलते हैं। तो या फिर पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं। और ये जो पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इनका जब डिसोसिएशन होगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही साथ वो पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन लिबरेट हो जाएंगे। इसमें स्टेप वाइज लिबरेशन होता है हाइड्रोजन आयन का। अब जैसे H2CO3 ही हो गया या H2SO3 हो गया, तो इसमें पहले H+ आयन 1 लिबरेट होगा और HSO3 माइनस बनेगा, फिर दूसरा H+ आयन लिबरेट होगा। देखते हैं आगे और कैसे ये टाइट्रेशन होता है इसमें, तो आपको और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, ये देखिए H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अब ये तो डाइप्रोटिक है, मतलब 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर लिबरेट होगा। तो पहले क्या होता है, H2SO3 में से 1 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे देखिए लिबरेट हो रहा है और ये बन गया H+ और HSO3 माइनस। अब ये HSO3 माइनस जो है उसमें से फिर से H+ आयन लिबरेट होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन लिबरेट हो रहे हैं और दोनों अलग अलग स्टेप में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही साथ होगा। तो जब ऐसे एसिड का टाइट्रेशन किसी बेस के साथ होगा तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा, बट यहाँ पे एंड पॉइंट जो आएगा वो 2 एंड पॉइंट आएगा। अब 2 एंड पॉइंट क्यों आएगा? और यहाँ पे इंडिकेटर भी 2 बार कलर चेंज शो करेगा। तो 2 एंड पॉइंट क्यों आएगा? पहले जो होता है, अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि जो ये डाइप्रोटिक एसिड है ये H+ आयन को लिबरेट 2 स्टेप में कर रहा है, ठीक। तो जब इसका टाइट्रेशन, सपोज इसको कोनिकल फ्लास्क में आपने लिया हुआ है, ये सल्फ्यूरस एसिड को कोनिकल फ्लास्क में लिया है और इसको
किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो पहले जो होगा फर्स्ट वाला रिएक्शन हो रहा है, स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला रिएक्शन होगा, डिसोसिएशन होगा यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में जो एसिड है तो, और फर्स्ट रिएक्शन जब होगा तो ये H+ आयन लिबरेट होगा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, pH बहुत ही कम रहेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही बेस डाला जाएगा तो ये H+ आयन न्यूट्रलाइज होने लगेगा, न्यूट्रलाइज होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने लगेगा, तो pH धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा आपका सल्फ्यूरस एसिड ये डिसोसिएट हो गया। अब डिसोसिएट हो गया और H+ आयन लिबरेट किया है, तो जब बेस के साथ रिएक्शन होगा तो वो पूरा का पूरा H+ आयन को कंज्यूम कर लेगा, और एक देखिए सडन राइज इन pH आता है। सडन राइज इन pH कब आएगा, जब पूरा का पूरा H+ आयन जो लिबरेट हुआ है ड्यू टू फर्स्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन की वजह से जो H+ आयन लिबरेट हुआ वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया आपके बेस के साथ। अब एक्सेस बेस जैसे ही आएगा ये सडन राइज इन pH होता है, तो ये हो गया फर्स्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, ये पहला इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया। अब क्या होगा कि जो HSO3 माइनस था वो फिर से डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा। अब ये फिर से डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, फिर से H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो ये जो सडन इंक्रीज इन pH हो रहा था ड्यू टू डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन, ये H+ आयन कंसंट्रेशन तो कम हो गया था और बेस एक्सेस में आ रहा था, तो ये जो बेस एक्सेस में आ रहा था उसकी वजह से ये सडन राइज इन pH हो रहा था। लेकिन अब ये जो HSO3 माइनस था वो फिर से अब डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गया और ये सेकंड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये सेकंड रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगा, तो जिससे क्या होगा, तो ये जो राइज इन pH था वो अब देखिए थोड़ा थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट होने लगा। उसके बाद फिर क्या होगा, आप बेस तो ऐड करते जा रहे हो ब्यूरेट से, तो अब ये जो बेस होगा वो अब इस H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने लगेगा। पहले फर्स्ट वाले को किया, अब ये दूसरे वाले को करना स्टार्ट करेगा। फिर से एक समय तो फिर से न्यूट्रलाइजेशन ये हो रहा है यहाँ पर। अब क्या होगा कि ये अब दूसरा जो H+ आयन था अब ये भी कंज्यूम हो गया, अब ये भी कंज्यूम हो गया, तो फिर से एक्सेस ऑफ अल्कली आएगा, एक्सेस ऑफ बेस आएगा ब्यूरेट से, एक्सेस ऑफ बेस आएगा तो फिर से सडन राइज इन pH होगा। ये आपका दूसरा इन्फ्लेशन पॉइंट हो जाएगा, मतलब दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए न्यूट्रलाइजेशन कर्व इस तरीके का आता है और यहाँ पे एंड पॉइंट दो आते हैं, एक फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए, एक दूसरे वाले रिएक्शन के लिए। एक पहले H+ आयन जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है, फिर दूसरे वाले को न्यूट्रलाइज करता है, तो दूसरा एंड पॉइंट आता है। तो इस वाले टाइट्रेशन में जो फर्स्ट एंड पॉइंट आता है, दैट एंड पॉइंट इज सीन एट pH 4.58 एंड फॉर दिस टू डिटेक्ट दिस एंड पॉइंट methyl orange indicator is used, and second endpoint is observed at 10.13 pH, and for this the suitable indicator is thymophthalin. So in this two indicators are used, and the first indicator will show color change at pH 4.58 and the second indicator will show color change at 10.13. So this happens in titration of polybasic acid with strong base. So this is all about different types of acid base titration. So let's see what is this neutralization curve and what information we get from this neutralization curve. So what is this neutralization curve? So neutralization curve is nothing but a representation of neutralization reaction between acid and base. Since we saw that in acid base titration, reaction of acid with base or base with acid takes place, and due to reaction of acid with base, due to this reaction neutralization takes place, and
that graph neutralization curve shows that neutralization reaction, and this neutralization curve is plotted between pH and volume of acid or base added, means pH चेंज इन द मिक्सचर जो कि कोनिकल फ्लास्क में रखा हुआ रहता है उसमें जो pH चेंज होगा वो, प्लस जो ब्यूरेट से ऐड हो रहा है वो। तो ब्यूरेट से जो भी एसिड या बेस जो भी ऐड हो रहा है वो आपके वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में रहेगा, और जो pH चेंज हो रहा है वो आपके वाई एक्सिस में रहेगा, और इसको लेके जो भी ग्राफ आएगा दैट ग्राफ इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ओके, एंड what that graph shows, the graph shows that with the addition of acid or base from burette, what pH change takes place in the conical flask, कि आप जैसे ही ब्यूरेट से एसिड या बेस कोनिकल फ्लास्क में डालते हो तो कोनिकल फ्लास्क में जो भी मिक्सचर रहेगा उसमें pH चेंज जो हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, या तो अल्कलाइन से एसिडिक हो रहा है या फिर एसिडिक से अल्कलाइन हो रहा है। ठीक है, so that neutralization curve actually shows progress of acid base titration and it also indicates end point in titration। वो जो इन्फ्लेशन होता है उससे हमें पता चलता है कि एंड पॉइंट वहीं पर आना है। अब देखिए ये टेबल एक दिया हुआ है, इसमें ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, और ये सारे इंडिकेटर्स एसिड है तो कौन सा कलर रहेगा, बेस है तो कौन सा कलर रहेगा। जैसे आपको फिनोप्थिलीन का डिस्कस हम लोगों ने किया है, फिनोप्थिलीन जो होता है अगर एसिडिक मीडियम है, ठीक है, अब अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं कोनिकल फ्लास्क में आपने एसिड रखा हुआ है और ब्यूरेट में बेस रखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में कोनिकल फ्लास्क में जब फिनोप्थिलीन डालेंगे तो वहाँ पे एसिड है तो वहाँ पे कलर जो होगा वो कलरलेस रहेगा। ठीक, और जैसे ही पूरा का पूरा एसिड कंज्यूम हो जाएगा, एक्सेस ऑफ बेस ब्यूरेट से आएगा, जैसे ही बेस एक्सेस आया आपका जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें एसिडिक अल्कलाइन हो जाएगा, और अल्कलाइन होते ही कलर चेंज जो होगा फिनोप्थिलीन का वो पिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से कलर चेंज होता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो एसिड कंडीशन में ऐसे कलर में रहते हैं और बेसिक कंडीशन में ऐसे कलर में रहते हैं, और ये इनका pH रेंज है। तो इस तरीके से एसिड बेस टाइट्रेशन में ये सारे इंडिकेटर्स यूज होते हैं, एंड दिस न्यूट्रलाइजेशन कर्व gives information about progress of acid base titration, and it also gives information about end point and how the pH changes in the conical flask. So these all information we get from neutralization curve. So this is all about acid base titration, and in next lecture we will be discussing some other topic. If you have any doubt about this topic, you can ask through the comment section, and feel free to ask any doubt. Doubt will be answered. Thank you very much.